and English language into the Vidhan Sabha. Yes. मैं इस सदन की दूसरी बार की सदस्य हूँ, तो पिछले सात बार जब मैंने बजट पे बोला है, अभिभाषण पे बोला है, तो हिंदी में बोला है. So I'll take this opportunity to speak in English today. I was trained in this language, and I'll give it its due respect. First of all, I want to congratulate my Honorable Chief Minister and the entire UP government for a very, very successful Mahakumbh Ayojan, in which more than 66 crore people participated. What happens with congregations like these, what happens with events like the Mahakumbh, is it changes the perception not just of the state but of the entire nation. I myself was very lucky to have studied abroad. A lot of my friends from other countries, from various other countries, visited Prayagraj, visited the Mahakumbh Mela. I myself went with a lot of foreign delegatories, and it is a model that is now being studied across nations. Within different countries, they are studying how the Mahakumbh was organized in Uttar Pradesh, and it has become a development model of sorts for many, many other countries as well. So I want to thank my Honorable Chief Minister for this fantastic organization of this great congregation. Alongside, just yesterday, the Honorable Chief Minister honored many of the Safai Karmis and the Swasth Karmis by giving them a bonus of 10,000 rupees and increasing various facilities that they can get from the state government, including insurance of up to 5 lakhs for our Safai Karmis. I want to thank the Honorable Chief Minister for that. This has been a very good budget, one of the largest budgets in the country that has been presented by the Uttar Pradesh government. I, especially being a woman, want to congratulate and thank our Honorable Minister, our Honorable Finance Minister, for bringing in schemes like the Rani Lakshmibai Scooty Yojana, under which a lot of bright young girls will be further, they'll have more motivation to study harder, to work harder. This is a fantastic, and we do stuff like this in our own Vidhan Sabhas as much as we can. So this is going to be a great initiative for girls. I also want to thank the Honorable Finance Minister for having a very good budget for data centers. As we know, the data centers the data center in Greater Noida that has been opened by Hiranandani ji with Yota has been a game changer in the space of technology and AI. Alongside, because I know there are a lot of people willing to speak and wanting to speak, I don't want to take up that much time, but Honorable Minister Dayasankar ji has given me a wonderful PPP model bus stop, and I thank him for that. I also want to remind him of his promise for another workshop that is to be awarded to Raebareli district, and our Honorable Speaker sir is here. Speaker Saab, I was just saying thank you so much for also introducing the English language into the Southern. We are getting closer to the Parliament day by day by introducing various local, regional and English language. I wanted to also thank the Honorable Chief Minister and Finance Minister for the North-South corridor, which is going to further improve infrastructure, especially connectivity. And last but not the least, I would really like to thank the Honorable Chief Minister, the Honorable Finance Minister, the Uttar Pradesh government for the wonderful law and order that we are provided with as a state, in our state. As a woman, and I speak to many young women all the time about this, many young students, being a female MLA myself. And I think the one thing that women want the most, need the most to succeed is law and order. And the Yogi government has unprecedentedly done very, very good work on this. And I thank my government for this, I thank my Honorable Chief Minister for this, and my Honorable Speaker Sahab for giving me the opportunity to speak. Thank you very much. Thank you. Jai Hind, Jai Hind. ये सब जानते हैं कि आपका सनातन में कोई विश्वास नहीं है, सनातनी परंपरा के आप विरोधी हैं। जिस महाकुंभ के पर्व में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया हो, उसकी उन 65 करोड़ की भावनाओं को आपने एक लाइन में आहत किया है।
आपने अपने संबोधन में कहा है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। क्या आप ऐसा मानते हैं कि वो 65 करोड़ से ज्यादा लोग आपकी नजरों में पापी हैं? क्या आप ऐसा गाने को आप 65 करोड़ लोगों के ऊपर कोट करके नहीं बोल सकते हैं? नहीं, आप मानवर आप कार्रवाई में दिखवा लीजिए। उन्होंने यही है, और ये समाजवादी पार्टी की सनातनी मानसिकता के विरोधी का परिचायक है। यही आशय उनके संबोधन में मान्य, और आप चाहे कार्रवाई में इसको दिखवा लीजिए। निषाद पार्टी से कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं? नहीं है कि नहीं है, इशू नहीं है, आप बोलेंगे? बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपको इस बजट की इस चर्चा पर हमें बोलने का जो अवसर दिया है, उस पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन उसी बात को सभी हमारे साथी पक्ष विपक्ष के लोग जिनको जैसा दिखा वैसा उन्होंने बोला, मैं उससे संबंध कर रहा हूं। लेकिन जो कुछ भी है सबने देखा है, विकास भी देखा है, उसकी गति भी देखी है, और आपने भी 30 साल थे, आपके पास केंद्र और राज्य में सरकार थी, आरक्षण पर आप बोलने वाले हकदार नहीं हैं। आपके नेता विशंबर जी ने जब दिल्ली में आवाज़ उठाई तो समाजवादी का दोहरा चरित्र है, उन्होंने विरोध किया था, भाग गए थे समाजवादी वहाँ। आप निषादों के हितैषी नहीं है, उस पर बोलने का हक नहीं आपको है। फूलन देवी के हत्यारे आप लोग हैं, जमुना निषाद के हत्यारे हैं, दर्जन भर निषाद नेताओं के हत्यारे हैं आप लोग। हम जांच का मांग करते हैं, सीबीआई जांच करता हूँ। आप लोग निषादों के हितैषी नहीं हो सकते, आप चुप रहिए, बोलना दीजिए, आप पहले बोलने दीजिए। हत्यारे हैं आप लोग, आप अखिलेश के हत्यारे हैं। आपकी पुलिस ने सरेआम गोली चलाई है, 300 का 2 मुलजिम बनाओ, 30,000 लोगों के सामने। आप बोले हकदार नहीं हो, आप बोले हकदार नहीं हो, तब क्यों चुप रहा है ना? मैं कह रहा, मैं तो बोला नहीं ना, चुप रहना कह दीजिए। जब अभी सत्यानाश, अगर ऐसे ही निषादों को लड़ाते रहे और निषादों पर चलिए बैठे हो गया तो सत्यानाश। आप डायरेक्ट बात मत करिए, अभी तो अभी हाफ हुए ना, इस बार साफ हो जाओगे। अभी हाफ हुए हो, इस बार साफ हो जाओगे। बैठिए, आपने भी बहुत कुछ बोला था, आपने भी बहुत कुछ बोला था। बैठिए, आपने भी बहुत सारी चीजें बोली थी जिसका उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। पाएंगे, आप बैठ जाइए। आप निषादों के बारे बस कुछ नहीं, आप लोग सामाजिक गीत हो, राजनीतिक गीत हो, जहां भी मामला होता है पहुंच जाते समाजवादी पार्टी लोग। मैं कहता हूं फर्जी केस लगाना आपका काम है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। फर्जी केस में लगाना, अरे बैठो नहीं, आपने लगवाया क्या? जो आप परेशान हो, आपने लगवाया क्या? आपने लगवाया क्या? बैठिए। अरे किया है, अरे कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आपकी पुलिस ने गोली चलवाई थी, 302 का मुलजिम आपने बनाया है, कोर्ट ने ऑर्डर किया, कोर्ट ने। आपस में बात, मंत्री जी मुझे बताइए, मंत्री जी मेरे को देख कर बात मैं कह रहा हूँ, आप मेरे को इधर थोड़ा ऐसे हो जाइए, थोड़ा मैं तो नहीं कहूँगा कि समाजवादी थोड़ा सा, जब मैं बोल रहा तो नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा। अरे आप देखो बहुत सुंदर लग रहे हो, मेरे को देखो। मैं अपने ये अच्छी चीज पसंद नहीं आएगी ना। अरे मेरे को आप पसंद हो, आप बोलो। मैं अपनी सरकार के इस बजट का बस मैं समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छा। 70 साल से मत्स्य विभाग को एक भी रुपया नहीं दिया था। 2014 में जब हमने 13 में आंदोलन किया, इन लोगों ने उस पर विरोध करना शुरू किया। निषाद जब अलग हो गए सपा बसपा कांग्रेस से, ये लोग समाप्त होना शुरू हो गए, तो निषादों को तरह तरह से। अरे क्यों परेशान हो यार, शांत रहिए। 2014 में मत्स्य मंत्रालय ब्लू रेगुलेशन आया, मैं बजट पर बोल रहा हूँ। 2014 में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ दिल्ली में, दिल्ली में अलग हुआ। सभी राज्य सरकारों ने अरे यार सुनो ना तुम, सभी राज्य सरकारों ने केंद्र का पैसा दिया। अरे सुनो बैठो, और राज्य सरकार ने, अरे बैठिए, हो गया। मैं कह रहा हूँ, अरे बैठिए, अब आप बहुत बोल रहे हैं, सुनिए, ये गलत बात है। अरे बजट सुनो, बजट सुनिए। अरे बैठिए, सुनो, बजट सुनो। दिल्ली में केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, अलग से बजट हुआ, ब्लू रेगुलेशन आया, बाद में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हुआ। ये समाज में जब जानते हैं
कि मत्स्य विभाग में, मत्स्य क्षेत्र में 99% लोग मछुआरे काम करते हैं, लेकिन निषाद विरोधी ऐसी सरकार है कि 2014 से लेकर 2014 समाजवादी पार्टी 2014 की बात कर रहे हैं, 14 की बात कर रहे हैं, 2014 अरे यार चुप रहो ना। 2014 से अरे 2014 से देखो अरे यार आपस में गलत बात है फिर। देखो मैं नहीं, पूरा बोलूंगा। 2014 से हाँ। 2017 तक 1 रुपया भी नहीं दिया निषादों के हितों में। अभी उन्होंने ये हाथ लगाया था, नीचे वाला लगाया नहीं था। 2017 तक 1 रुपया दिया हूँ, बता दे। 2017 तक नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। जब हम आए हैं 2017 में, जब इनको सत्ता से हटाए हैं, 2017 में हटाए हैं, 2019 में हम आए हैं, 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया पूरे भारत में, पूरे देश के मछुआरों को मिला है। 1 रुपया भी नहीं दिया था इन्होंने। मत्स्य विभाग में मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मछुआ कल्याण को सुनिए आपने। अरे सुनो तो, पहले सुनने की, पहले सुनने की आदत करो। अरे सुनो ना। हम निषाद राज के मछली से क्या वंशज हैं। मतलब है खाने के अलावा? सुनिए हम निषाद राज के तुम वंशज मछली हैं। खाने के अलावा जानते हो मैं कुछ क्या तुम इसमें? अभी मिर्ची लग जाएगी। हाँ। अगर ये रघुवंशी हैं तो चले मथुरा बनाए ना, चले रघुवंशी हैं तो चले मथुरा बनाए ना। मैं तो निषाद राज बना रहा हूँ ना, मैं निषाद राज का किला बना रहा हूँ, निषाद राज की मूर्ति लगवा रहा हूँ, हजारों करोड़ वर्ष उसमें मूर्ति में खर्च भी कराया, जंगल से मंगल किया। अपने किसी भी समाज का सम्मान बड़ा होता है, उसके बाद सुरक्षा बड़ी होती है, उसके बाद समृद्धि होती है। सुनिए अरे सुनिए, अरे सुन लो साथी, सुन लो। 1 रुपए का बजट अपने शासन काल में दिए हो तो बता दे, विपक्ष के नेता बैठे हो। 1 रुपए का बजट अगर मछुआरों के हितों के लिए लाए हो, मैं बैठा हूं तो बता दे। इनके बाद आप बताइए, बताना पड़ेगा आपको, अभी कल बताइएगा। अरे बताते हैं, आएगा बताइएगा। लेकिन क्या खनन का पर्चा जारी कराया, सब उन्हीं का किया, और तब आप हमारे ही साथ घूम रहे मैं थे। हो रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जहां घूमते हैं वही होता है सब। मैं बता रहा हूं। अरे आपकी सरकार में, अरे सुनो, आपकी सरकार में पट्टा एक ग्राम सुन लीजिए, अरे सुनो प्लीज, ग्राम सभा की जमीन हो होती गया, है, बहुत हो गया। ग्राम सभा की जमीन होती है। अगर सामान ऊंचा है तो अनुसूचित जाति से पैसा मिलेगा, अब पट्टा होगा तो मेरा समाज कमाएगा, सरकार को चुकाएगा। पहली बार मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री संपदा योजना में हजारों पट्टे धारकों को 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपया दिलाया हो। 1 रुपया दिए हो, बता दे। 1 रुपया इलाज के लिए दिया हो। 25 करोड़ रुपया मछुआ कल्याण कोष में 2 साल से दे रहा हूं। इनके बच्चों का कोई भी आयुष्मान भारत कार्ड जिस निषाद का नहीं होगा तो उसे 5 लाख का इलाज, आयुष्मान भारत कार्ड का जहां इलाज होता है वहां जाके हमारा समाज इलाज करा ले। 5 लाख मैं दूंगा। मैं इन्होंने सुनने की आदि बनी है, यही गलती आपकी। इन्होंने शिक्षा अरे सुनो ना प्लीज, शिक्षा छीन लिया था। ये जवाब मांगेगा समाज गांव में। शिक्षा छीन लिया था। दिल्ली से केंद्र सरकार का आदेश है कि जो विमुक्त जातियां हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति की शिक्षा दी जाए। मतलब इनके बच्चे ये उजड़े हुए हैं, अंग्रेजों ने उजाड़ा है, इनके बच्चे अनुसूचित जनजाति का सुविधा पाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन 2013 में इनकी सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया, कह दिया पिछड़े हैं, अब इनके हैं बच्चे पिछड़ी हैं, अब खाएंगे खिचड़ी, यही इनका काम है। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया है। अभी मैं कहूंगा आपके तरफ भी नेता है, समाज में जाके प्रचार करिए। ये समाज देश को आज़ाद कराने वाला है। अभी हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, बीए में 30,000 और उससे ऊपर 50,000 देकर निषादों के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। ये सुनने की आदि बनी है। अभी 2 लाख से जिसका कम होगा, बच्ची की शादी के लिए 51,000 अलग से है। इन्होंने लिख दिया था
कि जो मछली मारे वही मछुआरा है। बताओ, राजस्व संहिता में लिखा है केवट मल्ला कश्यप कहार धीवा रखवार बाथन तो रहा। दर्जन भर नेता आपके पास थे, सबकी जुबान सुन लिया था, और आपने एक विशेष वर्ग को शांत रहिए लिख दिया, आप उधर मत सुनो मेरे को। लिख दिया कि जो मछली मारे वही मछुआरा है। पता चला कि पश्चिम के 30 जिले। और क्या लिखा, हमारे यहाँ एक मछुआ पद है, जो जाल बीनेगा ना डूबेगा वो काम करेगा। 1200 नौकरी थी, इन्होंने लिख दिया। अब उसको बंद करके उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। अब बताओ, पूछा जाए इनसे कि मछली उर्दू पढ़ती है क्या, निषाद उर्दू पढ़ता है क्या जरूरत है हमारे विभाग में उर्दू अनुवादक? कौन सा रिकॉर्ड, कौन रुपया दे दिए? जब 1 रुपया दिया नहीं तो उर्दू अनुवादक की क्या जरूरत था? निषादों की नौकरी छीनने वाले हैं। अखिलेश निषाद की हत्या करा के 302 का मूल्य मनाने वाले हैं। अरे सुन लीजिए, हमारे नाम को अनुसूचित जाति की सूची में था। अरे मैं अनुसूचित जाति की सूची में हम थे, इन लोगों ने उसको छीन लिया। धन्यवाद, बहुत अच्छा बोले, छीनने वाले हैं। वेरी गुड। हमारा नाम ओबीसी में डालना गलत है, हमारा नाम ओबीसी में डालना गलत है। और इन्होंने अगर 31 दिसंबर 2016 को ओबीसी में से निकाला है तो 9% धन्यवाद निकाला। अच्छा, वो राजभर जी की पार्टी से कोई बोलेगा? हमारी सरकार ने, श्री ओम प्रकाश जी राजभर वाली सुषमा से कोई बोलेगा? नहीं। हमारी सरकार, लोकदल से? हमारी सरकार ने नहीं। मछुआरों के हितों के लिए राजा भैया नहीं है। जितना भी बजट आया है और? मैंने पूरा खर्च कर रखा है। अभी राज्य सरकार ने अभी बजट दिया इन्होंने, मैं धन्यवाद दूंगा अपने वित्त मंत्री को कि जो भी पैसा अपना दल सोनेलाल से कोई बोलेगा? मुख्यमंत्री बोलना है? एक ही आदमी को मिलेगा, नेता को। आप नेता हो? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो नेता हो बोल सकता है। क्या नाम है? रामनिवास वर्मा जी, आप बोल चुके हैं? धन्यवाद देता हूँ, इतना जरूर चाहूंगा। आप बोल चुके हैं? आपने बोलना है? वर्मा जी बोलना है? मैं इतना जरूर चाहूंगा कि फर्जी काम हो गया। बैठिए। धन्यवाद। बैठा दिया, आप भी बैठ जाओ। उनको भी बैठा दिया, आप भी बैठ जाओ।